Very good afternoon, friends. I'm CS Pankaj Kumar Jha. Welcomes you all of you at Corporate Concept classes. Friends, now we are going to step towards the further provisions of Indian Contract Act 1872. Earlier we have discussed about some definitions, that is offer, agreement, acceptance, consideration and such on. Now we will discuss some important definitions in detail and further legal provisions. Now friends, first of all, we come to the analysis of the term offer. As the term offer is defined under section 2A, we have seen that what are the provisions, what is the importance of the definition. Now we will discuss about the essential elements of offer. Friends, जो definition में हमने देखा कि one person signifies his willingness to another to obtain the assent of the another person to do or not to do something, that is offer. So by the definition we will see that there must be certain elements which are to be considered as the essential elements of the term offer. So in the term offer, there must be one offerer and offering. Hence, at least two parties. Communication of offer. Communication of offer to the offeree. Offer must be with a view to obtaining the assent of the, that is, assent object. A statement made jokingly does not amount to an offer. Means one must be serious to consider his statement as an offer, because there must be an intention to have the assent of the another person, that is called offering. Obviously, offer may be positive or negative, because once we want the assent of another person to abstain from doing something, that is called negative, and when we want assent of another person to do something, that is called positive. Mere expression of willingness does not constitute an offer. So these are the essential terms of the offer. Besides this, there are other terms also which should be considered as which makes any statement or any activity as an offer. Now we come to the legal rules as to the valid offer. What are the legal rules for the offer? Legal rules as to valid offer. Offer must be communicated to the offer must be communicated to the offeree. The offer is complete when it is communicated to the offeree, means to whom you are giving order, that must be communicated. For example, suppose A is master, B is servant. Suppose he has some goods of A, some goods or valuable of A has been theft or missed. The servant moves from the house in search of that valuable or the goods. But after
he left the house in search of the goods. Mr. A, who is the master of the goods, he announces some reward for the finder of the goods if somebody finds the goods and revert it back to the Mr. A, then he will pay some reward. Mr. B, who is the servant, he had left the house in search of the goods. He comes, he finds the goods and he get it return to the master. Now he come to know that after his leaving the house in search of the goods, Mr. A has announced some reward, say 1,000 rupees. Now he wants to claim that. But in this case, there was no such offer by A to B because the announcement was made after his leaving from the house and he was not communicated regarding this offer. Accordingly, the offer must be certain, definite, and there must not be vague or ambiguous. Means whatever the offer is made by one person, it must be communicated, it must be definite that what the offer is being made. There should be no any ambiguity in identification, in verification of the term offer. The offer must be capable of creating legal relation. Obviously, for any contract, there must be legality of object and intention to create legal relation. Offer may be expressed or implied. As the contract can be expressed or implied, offer may also be expressed or implied. Communication of complete offer. Offer should not be in vague or offer should not be communicated in part. It must be communicated in fully. There is a counter offer. A counter offer amounts to rejection of the original offer. Cross offer do not conclude a contract. An offer must not thrust the burden of acceptance on the offeree. It should be his will, the consent should be free to accept the offer. So these are the legal rules for the offer to be considered as clear. And offer must be distinguished from invitation to offer. For example, price tags attached with the goods displayed in a shop is not an offer. This is only an invitation to offer. So these are the legal rules regarding the offer. Now we come to the acceptance. First, before the acceptance, we can see the kinds of offer. What are the type or kinds of the offer? Offer may be express, offer may be implied, offer may be specific, offer may be general, offer may be cross, offer may be counter, offer may be standing. So what are these? Express offer, when the offerer expressly declares his terms, that is called expressly communicate the offer is said to be express offer. And implied offer, obviously that should be inferred by the conduct of the parties. Accordingly, specific offer. A specific offer is made in a particular person or a group of person. Means that offer is not for the public at large. The person to whom the offer is being made, it must be specified, it must be identified. As well as general offer. General offer means, it means an offer which is made to the public in general. So there should not be a specific, there should not be a specific individual or a group of individuals or a group of person. It must be for the public at large. Cross offer, when two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offer, that is called cross offer. For example, suppose two cross offer does not conclude contract. Two offer are said to be cross offer if they are made by the same parties to one another. Each offer made is ignorance of the offer made by the another party, and the terms and conditions contained in both offers are same. So if these elements are being present there, then it shall be considered that the offer is a cross offer. So what is the cross offer? Cross offer, what are the conditions? Cross offer means the offer is being made to each another, by two parties to each other. They are very much ignorant. They does not have any information that this person is making offer to me, and the
terms and conditions of the offer must be the same. When does contract come into existence? A contract comes into existence when any of the parties accept the cross offer made by the other parties. Besides this, there is a counter offer. When the offeree give qualified accept. Counter offer means if there is some condition. If offeree means who accepts the offer, if he gives some condition for the acceptance of the offer, such type of offer will be called counter offer. And variation in the terms of the original offer. He said, suppose that somebody has made the offer to another person and the offeree says that I will accept it, but subject to the condition that you will have to modify the terms of the offer, such and such terms of the offer, then it will be said that this is the counter offer. Standing open and continuous offer. An offer is allowed to remain open for acceptance over a period of time. There is no any stipulation regarding the time period of the offer, so it will be said standing open and continuous offer. Lapse of offer. By communication of notice of revocation. If any of the party revokes and it communicated to the another party, it will be said that the offer has been revoked. By the communication of notice by an offerer. Means another is by lapse of time. Obviously, if the offer is for the specific period of time and the precedent time lapses, it will be said that offer has been revoked. By failure to accept condition precedent. Whatever the condition is mentioned in the offer, if anybody fails to accept that condition, then it will be said that offer has been revoked. By death or insanity of the offer, by counter offer by the offeree. So these are the way in how the offer can be revoked. It may be by change of the offer, by change of the law, by rejection of the offer by the offeree, by not accepting the offer according to the prescribed or usual mode. So these are the modes of the rejection of offer. Now we come to the acceptance. Same terms and conditions as the offer will be applicable for acceptance. Acceptance must be absolute and qualified and not qualified, because we have said that if there is a condition mentioned by the offeree or acceptor that to modify certain terms and conditions, then it shall be the offer shall be revoked. So acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be communicated as the offer is required to be communicated to the offeree. Acceptance must also be communicated. Manner of acceptance. If offerer has stipulated that the acceptance to be given in the particular mode, then it shall be the communication of the acceptance will be provided in that particular mode. Or if there is no any manner of communication of the acceptance is prescribed, then the reasonable mode of communication can be considered as the acceptance. Acceptance or offer must be made by the offerer. Acceptance must be communicated to the offerer. So these are the legal rules, these are the provisions for the acceptance. Now we come to the essential elements of the contract. Essential elements of the contract. तो क्या क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के, जिसको हमने पहले भी देखा. वो सारी चीजें, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है ये कैपेसिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है. हमने ऑफर देखा, एक्सेप्टेंस देखा, कंसिडरेशन देखा. नाउ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. तो फ्रेंड्स, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये मेंशन नहीं है कि हु आर कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. रादर ये दिया हुआ है कि हु आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सो हु आर दोस? Those are basically minor. First, second is unsound mind. Third is person disqualified by other law, by any law.
सो दीज आर द पर्सन। अब माइनर किसे कहते हैं? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात करें, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो हु आर incompetent to enter into contract. These are minor, person of unsound mind, person disqualified by law। अब माइनर कौन है, अनसाउंड माइंड कौन है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय कौन है, बाय लॉ कौन है, ये हम एक एक करके देखते हैं। माइनर जो है, माइनर के बारे में क्या चीज कहा गया है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी according to the law to which he is subject, which is of sound mind and not disqualified by from contracting by any law to which he is subject। एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, इसके हिसाब से कोई भी पर्सन जो 18 इयर्स का हो गया है, ही इज मेजर, ही इज 18 इयर्स एंड अबव इज मेजर। दूसरा क्या चीज कहा गया है कि व्हेन अ गार्जियन, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि 21 साल की उम्र में लोग मेजर माने जाते हैं। वो केसेस कौन से हैं? कहता है क्या कि व्हेन गार्जियन ऑफ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, तो मीन्स कि जब गार्जियन ऑफ माइनर is appointed under गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, तो यहां पे एज क्या होगी? 21 ईयर मेजोरिटी के लिए। When माइनर्स प्रॉपर्टी हैज पास्ड अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, तो भी यहां पे क्या है? माइनर की प्रॉपर्टी यदि है, माइनर्स प्रॉपर्टी ये कोर्ट के थ्रू जो है यहां पे होता है, तो यहां पे 21 ईयर। तो ये दो सिचुएशन है क्या कि कब मेजर होगा। इसी तरह से क्या चीज कहा गया है कि अनसाउंड माइंड की बात है। अनसाउंड माइंड मींस इन जनरल केसेस है क्या कि अनसाउंड माइंड होगा कौन? तो अनसाउंड माइंड के लिए कहा गया है क्या, 3-4 चीजों को दिया गया है कि ल्यूनेटिक, इडियट एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अब ये अनसाउंडनेस जो होता है वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जब गर्मी आती है तो वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं और फिर सर्दियों में वो ठीक हो जाते हैं। कई लोगों का क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है सो अनसाउंडनेस रहता है उनका, फिर उस सिचुएशन से जैसे उबरते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये अनसाउंड माइंड परमानेंट भी हो सकता है और कई लोग जो है सो हमेशा के लिए ही होते हैं। तो अनसाउंडनेस जो है वो अनसाउंडनेस टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। उसी तरह से इडियट की बात करें तो इडियट कौन होता है कि जिसे आप मतलब जिसको आप ये कहते हो कि दिमाग से पैदल है, जिसे बार बार समझाने की कोशिश करो लेकिन वो नहीं समझता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कॉलेज में, आप अपने इंस्टीट्यूट में, आप अपने स्कूल में कई लड़कों को देखते होंगे कि वो जब जा रहे होते हैं, बगल से यदि कोई जो है सो
फीमेल क्लासमेट जा रही है या फीमेल स्कूलमेट जा रही है या रास्ते पे भी जा रहे हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं तो जो गर्ल्स को पसंद नहीं आता है तो वो यूजुअली बोलती है इडियट कहीं का। अब वो इडियट बोलती है तो ये ऐसे लोग होते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं। तो ये लोग, इट मींस कि ऐसे पर्सन जिनको कि आप कितना भी समझाओ लेकिन उनके समझ में जो बात नहीं आती है तो दे आर कॉल्ड इडियट पर्सन। तो इसलिए इनकेस यदि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ल्यूनेटिक क्या होता है? ल्यूनेटिक को या तो जैसे इनकी परमानेंट जो है ये अपने एब्सेंट माइंड के होते हैं या ये जो है टेम्पररीली एब्सेंट माइंड के होते हैं। इट मींस क्या चीज है कि या तो इनको कई बार होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको दौड़े पड़ते हैं तो एट दैट टाइम वो कहा जाएगा इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। और कई लोग होते हैं कि परमानेंटली ही उनका दिमाग जो है सो ऊपर की बिल्डिंग पूरी खाली हो जाती है तो वो लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं तो दे आर परमानेंटली इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को तो आप ये चीज कह सकते हैं, इनका अनसाउंडनेस जो है सो जब तक ये नशे में होते हैं तब तक ये इंटॉक्सिकेटेड, तब तक ये अनसाउंडनेस होती है इनकी। और इस वजह से किसी भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज नॉट इन हिज माइंड, ही वाज नॉट नॉर्मल। तो इनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। तो ये चीजें थी जो आपने देखा माइनर के बारे में, दूसरा देखा अनसाउंड माइंड, और तीसरा होता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय जो होते हैं कि जैसे कि एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का क्या होता है कि जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का कोई वॉर छिड़ा हुआ है या उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, उनके साथ जो है सो कॉमर्स या ट्रेड को बैन किया गया हुआ है, तो इन्हें एलियन एनिमी कहा गया है। वो आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हो सकता है उस टाइम में जो है वो फ्रेंड हो, लेकिन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर छिड़ जाता है तो वो भी कंसीडर क्या करेंगे, सॉरी एलियन एनिमी कंसीडर किया जाएगा और उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। फॉरेन सर्विस, फॉरेन सोवरेन, उनके साथ आप किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। कन्विक्ट, उस कॉर्पोरेशन एंड कंपनी एंड इंसॉल्वेंट। तो ये सारी चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी, सारे फॉरेन सॉवरेन जो है या कन्विक्टेड लोग हैं इंसॉल्वेंट इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी को यदि अलाउ नहीं किया गया है, यदि कंपनी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, कॉर्पोरेशन को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो उस केस में इनके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें दे रखी थी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम इन सारे टर्म को एक एक करके धीरे धीरे करके देखते हैं। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर। सबसे पहले हम माइनर को डिस्कस करते हैं कि पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर क्या होगा, उस एग्रीमेंट का पोजीशन क्या रहेगा। पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर, इसमें क्या चीज है कि वैलिडिटी की यदि बात करें, वैलिडिटी की बात करें तो सीधी सी बात है, एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या चीज होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। इसका एक काफी फेमस केस है मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें क्या है कि डी एक माइनर होता है। He has mortgaged his house in ₹20,000, but the mortgagee, that is money lender, paid him a sum of ₹8,000. Subsequently, the minor sued for setting aside the mortgage, held that the contract was void as Mr. D was man, therefore is not liable to pay anything to the lender. Means क्या चीज है कि यहां पे मोहरी विविस वर्सेस धर्मोदास घोष का जो केस है, ये धर्मोदास घोष डी, ये जो है ये माइनर रहते हैं। इन्होंने क्या किया, अपना जो है सो हाउस है उसे गिरवी पे रख दिया, मॉर्गेज कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। और ये कितने पे किया, 20,000 पे
कि तुम मुझे 20,000 दोगे और मैं ये घर तुम्हें गिरवी रखता हूं। जो ये मिस्टर एम थे, इन्होंने क्या किया, इन्हें डी को 8,000 रुपीज दिया हुआ था। इन द मीन टाइम बच्चा है, बच्चे का दिमाग तो चंचल होता है, उसने अपना दिमाग बदल लिया। उसने कहा कि ऐसा है कि आप जो मुझे 8,000 रुपये दिए थे और मैंने जो 20,000 पे एग्रीमेंट किया था, मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता। ये मोहरी बीवी जो है ये कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ab initio है। रीजन बीइंग द पर्सन विद whom you have entered into contract, that is void ab initio, as the person with whom you have entered into the contract or agreement, that is he is minor and contract with the minor is not considered to be a valid contract। तो इसकी वैलिडिटी क्या हो गई, void ab initio हो गई। इस वजह से जो मोहरी बीवी थे, जो पार्टी थी, उनका पैसा भी डूबा और इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। दूसरी बात, यदि माइनर ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, उसे रिटर्न करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो ये इसकी वॉइड ab initio था, इसे पैसे रिटर्न करने के लिए नहीं कहा गया। तो ये जो है इसे रिटर्न करने के लिए नहीं कहा जाएगा। फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय ए माइनर, नो डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वॉइड। ए माइनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। यानी कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, उसमें यदि किसी माइनर को आपको पार्टनर बनाना है तो उसके लिए दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि सभी पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा, तभी वो माइनर आपका पार्टनर बन सकता है। और वो जो पार्टनर बनेगा वो सिर्फ बेनिफिट के लिए बनेगा, ना कि लायबिलिटी उठाने के लिए। लायबिलिटी उसकी कुछ नहीं होगी। ही कैन बी पार्टनर ओनली टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, नॉट टू incur the liability of the partnership। नेक्स्ट क्या चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय माइनर आर वॉइड हैज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड ab initio था तो माइनर को किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी नहीं कहा जाएगा। माइनर्स पेरेंट गार्जियन आर लायबल टू माइनर्स क्रेडिटर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। हाँ, यदि इनका जो है सो कोई गार्जियन है और माइनर ने कोई जो है सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन दैट केस गार्जियन जो है उसके लिए लायबल होंगे। ए माइनर कैन एन एजेंट बट नॉट पर्सनली लायबल। तो माइनर जो है वो एजेंट की तरह, और आपको आगे भी पढ़ोगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट के का किया गया कोई भी काम होता है उसके लिए प्रिंसिपल जो होते हैं वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी क्या है कि माइनर जो है उसे एजेंट तो कर सकते हो लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। A minor cannot become shareholder of the company except when the shares are fully paid up and transferred by shareholder. A minor cannot be adjudicated as insolvent। तो ये सब माइनॉरिटी के में है। नेक्स्ट है क्या, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप। वो तो जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उन सब में अलाउ किया गया है कि बच्चे जो है सो पढ़ाई करते हैं, फिर ट्रेनिंग होता है, चाहे आप सीएस में भी देखें, सीए में भी देखें, इन सब के भी अपने अलग एक्ट है और अप्रेंटिसशिप एक्ट भी बना हुआ है। तो ये चीजें हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अप्रेंटिसशिप है, सर्विस है, एजुकेशन है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी फॉर ए माइनर, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ ए माइनर इज वैलिड। Minor cannot be surety in a contract of guarantee. Minor as a trade union member. Any person who has attained the age of 15 years may be member of registered trade union provided the rules of the trade union allow। तो ये चीज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं, ये ट्रेड यूनियन एक्ट से लिया गया हुआ है कि वहां के हिसाब से 15 साल के किसी भी बच्चे को जो है आप, यदि आपके जो ट्रेड यूनियन जो रहता है उसके बायलॉज में लिखा हुआ है तो 15 साल का बच्चा उसमें जो है सो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जो कि गार्जियन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरी की बात करें तो अब सबसे पहले हमें ये चीज समझना होगा कि भाई नेसेसरीज क्या होता है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें
कि ये जो नेसेसरीज है, नेसेसरीज पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। ये हो सकता है कि ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और उसके जो स्टेटस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई 10,000 कमाने वाला है, उसके लाइफ की जो नेसेसरीज होगी वही जो है सो कोई 50,000 कमाने वाला और वही कोई 5 लाख कमाने वाले की होगी, क्योंकि सबके जीवन ये जीने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए नेसेसरीज को, किसी के लिए फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स जो है इतना ही नेसेसरीज है, लेकिन किसी के लिए कि घर में पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, वो भी नेसेसरीज में आ जाता है। किसी के लिए एसी होना चाहिए, वो नेसेसरीज में आता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी टू स्पेंड द मनी। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेटस से बिलोंग करता है, अकॉर्डिंगली नेसेसरीज को जो है क्लासिफाई किया गया हुआ है। तो फूड, क्लॉथ्स, बेड, शेल्टर, शूज, मेडिसिन एंड सिमिलर अदर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, फॉर द लाइफ ऑफ द डिपेंडेंट्स, एक्सपेंसेस फॉर इंस्ट्रक्शन और इन ग्रेड ऑफ आर्ट्स, एक्सपेंसेस फॉर मोरल, रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, funeral expenses of his deceased family members, marriage expenses of the dependent female member in the family, expenses in the protection of his property or personal liberty। तो ये सारी चीजें जो है सो नेसेसरीज में आते हैं। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, माइनर लायबिलिटी फॉर टॉर्ट मींस यदि कोई सिविल रॉन्ग करता है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में हमने देख लिया है कि इडियट क्या होता है, हु इज कंजेनियल यानी बाय बर्थ अनसाउंड माइंड होता है, जिसको बाहर कितना भी समझाओ समझने को राजी ही नहीं है तो उसे इडियट कहा जाता है। हिज इनकैपेसिटी इज परमानेंट एंड देयरफॉर ही कैन नेवर अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट और एंड मेक ए रैशनल जजमेंट। जैसे कि देखते हैं कि कॉलेज स्कूल में जो कुछ लड़के इस तरह से होते हैं, उन्हें कितना भी कहो वो हुड़दंग मचाएंगे ही, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे ही करेंगे। उन्हें समझा के, टीचर समझा के थक गए, गार्जियन समझा के थक गए, अपने फ्रेंड्स समझा के थक गए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो दीज पर्सन, हालांकि ये लॉ के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मींस कि जो पर्सन बाय बर्थ ही जो है अनसाउंड माइंड का है और उसे कुछ भी कर लो वो किसी चीज को समझने को राजी नहीं है, तो इस तरह के पर्सन के साथ किया गया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और क्योंकि इन्हें जो है सो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ए पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड। तो यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो पर्सन जो होना चाहिए जब एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, बाद में भले ही वो अनसाउंड हो जाए लेकिन उस टाइम में उसका साउंड होना जरूरी है। डेलीरियस पर्सन फ्रॉम फीवर इज ऑल्सो नॉट। कई बार होता है कि जो लोगों को बहुत तेज यदि बुखार आ जाती है या इस तरह से कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है या कोई इस तरह से उसका जो है जिससे उसके मेंटल स्टेटस जो अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो भी पर्सन के साथ किया गया उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। हिप्नोटाइज्ड पर्संस, ये भी जो है अनसाउंड माइंड के ही माने जाते हैं। मेंटल डिके, ये सारे के सारे जो है अनसाउंड माइंड की कैपेसिटी में आते हैं। ल्यूनेटिक जो होते हैं इनको परमानेंटली नहीं होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। तो इनको जो है क्या चीज कहा जाता है कि जब ये ल्यूनेटिसिटी इन पे रहेगी तब उस टाइम में किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ड्रंकन पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी डिटरमाइंड बाय ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्वियसली कि यदि आप देखोगे कि जो है कोई भी कंपनी होती है उसका मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम में उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जितना उसमें दिया हुआ है उस तरीके से यदि वो उतने तक में वो काम करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज उससे बाहर यदि वो जो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कैपेसिटी से बाहर, तो उसे कहा जाता है अल्ट्रा वायरस। और अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं उसे जो है सो इलीगल करार दिया जाएगा, उसे जो है सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एलियन एनिमी जो हमने डिस्कस किया, जो बाहर के लोग हैं और उनके साथ हमारी कोई लड़ाई हो गई है, कोई हमारे देश की कोई लड़ाई हुई है, तो उनको जो है सो एलियन एनिमी कहा जाता है। कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई जेल सजा अपराधी है जो अभी जेल में है, सजा उसे हुई है, तो वो अपने सजा के दौरान में जो है किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। फॉरेन सर्वेंट्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड फॉरेन स्टाफ कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। However, a suit cannot be filed against them in the Indian courts without the prior sanction of the central government. तो ये सारी चीजें हमने देखा कि ये जो है ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने देखा कि ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। आगे अब हमारा क्या चीज है, आगे हमारे प्रोविजंस जो है आगे दिया हुआ है क्या चीज के लिए कि हमने पोजीशन माइनर की बात किया
हमने अनसाउंड माइंड की बात किया, तो और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ये है किस चीज के बारे में, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आगे फर्दर जो हमारे प्रोविजंस हैं उनको हम फिर देखते हैं। आई होप दैट whatever we have studied here regarding the capacity to contract, offer, acceptance, वो चीजें आपकी सारी क्लियर हो गई होगी। और यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे या हमारे ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। यदि नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आप डाल सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cc.pkj@gmail.com एंड YouTube चैनल और प्रोडक्ट कंसेप्ट क्लासेस पे। सो टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी स्टडी। थैंक यू।